technical matter is being... Yes, I know. These are the part and just parcel of informing this him. game. Yes, thank you. So, shall we begin now? Sure, sir. But let me introduce participants. Good evening to all of you. This is the online Malvi Mission Teachers Training Program on NEP 2020 Orientation and Sensitization. I, Dr. Aftab Ahmed Ansari, on behalf of HRDC, AMU Aligarh. Today there is first session. 1 minute. Let me confirm whether ma'am will join or not, sir. Perhaps not. So let us begin. She might be busy somewhere. Yes. Sure, sir. Sir, participants, welcome you all on today's first inaugural session. This session will be start with the lecture of our honorable speaker, and will say the resource person, Professor R.T. Bedre, sir. Professor R.T. Bedre, sir, graduated from Dr. Baba Saheb Ambedkar, Marathwada University, and MA in English from Marathwada Udaygiri Mahavidyalaya Udaygiri with gold medal. He did his MPhil from Madurai Kamraj University, Madurai. Sir has done his PhD in English from Bharatiya Vidyapeeth, Madurai, Bharatiya Vidyapeeth, Pune. The Dramatic Art of Grish Kannad, a Critical Study in 2009. I think, sir, this was your topic of thesis. Yes. Research, Professor R.T. Bedre, sir, have successfully conducted 4 minor projects, 1 ICSSR funded and 1 major project funded by UGC. Sir has awarded more than 9 PhD degree under his able supervision successfully and 4 MPhil. He himself authored 7 books and written on play in English and 2 short stories in Marathi language. So this is the versatile personality of sir, what I'm just introducing him. He edited 4 books and more than 50 papers is published in various journals of repute from national and international arena. Now after that, his education, he joined his career as a lecturer from ACS College, if I'm not wrong, sir, Parbhani, from Parbhani, and then he moved from Parbhani to Sri Pandilal Gurai Mahavidyalaya as a principal. And in 2019, he has hold the position of director HRDC, Hari Singh Gaur, University, Sagar. This by my participant, this is the brief introduction of our today's learner speaker, Professor R.T. Bedre, sir. And if you really wish to know much more, you can visit on the website of HRDC, Hari Singh Gaur, University, Sagar, and you will be able to know much more about the sir versatile personality. With these words, I would like to invite sir to speak on the topic Core Spirit of NEP 2020. Now the mic over to you, sir. Thank you, Aftab ji. Thank you very much for your lavish introduction given to me. Thank you, sir. Very good afternoon to one and all. Let me first thank Professor Faiza Abbasi ma'am, who is heading this MMTTC of prestigious Aligarh Muslim University, Aligarh. Then I think course coordinator was Professor Saji Jamal Saab. Yes, sir. And my dear participants here.
Instead of saying just participants, I should say, my dear fellow participants, because you and me are sailing in the same boat, and the boat is NEP 2020. And we are supposed to sail in this boat for at least next 15 years. 15 years, I say. Because if you have read the NEP document, you will know there that, or you will find there that the maximum targets to be achieved are by 2040. Some by 2025, some 2030, some by 2035, and the maximum period is 2040, means the planned period of this policy is 20 years. And it is expected that after 20 years, we should revise the things and bring new things which are relevant to the changing times. Aftab Saab, will you tell me what is the composition of this audience? Whether all of them are comfortable in English or bilingual mode will be okay? They are from the different part of country. Okay. So I think it will be better to talk with them in this mixed language. Okay. That we call in Aligarh as Hindustani language. Yes, instead of calling bilingual, we should go in mixed way. Yes, sir. I ask because I know no single language can cater the needs of all Indians. Yes, sir. अगर मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करता हूं तो हो सकता है कि some participants from North India may face some difficulty. And if I continue with, during the time that from 4:45 to 5:15 for 1 hour for your lecture and 30 minutes. Okay, no issue. Thank you, sir, very much. And if I continue in Hindi, as I was saying, there may be some issue with the South Indian participants. So we have to go mixed way. And as Dr. Aftab ji were telling that this is the first session, or you may call it inaugural session of this course, right? This is the first session of the day 1. And before we go ahead, we must know certain things. हम सब जानते हैं कि इस पॉलिसी को 2020 में इसको ओपन किया गया, ओपन इन द सेंस ओपन फॉर इम्प्लीमेंटेशन. और मुझे याद है कि 1 जुलाई 2020 was the day when this policy was launched, I can say. और आज हम 2024 में हैं, right? Almost 4 years are likely to be completed. 4 years, because this is the 3rd week of June. And by the end of this week, we will be completing 4 years. और हम ये भी जानते हैं कि कुछ स्टेट्स में लगभग 2-3 साल इस पॉलिसी को शुरू किए हो चुके हैं. लेकिन हम ये भी जानना हमें जरूरी होगा कि इन सम स्टेट्स द थिंग्स हैव नॉट येट स्टार्टेड. ये भी हमें पता होना चाहिए, बिकॉज एज आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, in Maharashtra, things are taking place in such a way that they are going to start this implementation of NEP 2020 this year. 24-25 में शुरू होने जा रहा है. तो somewhere when UGC took the review of the things, it realized that जब पिछले साल UGC ने एक रिव्यू लिया, तब UGC को एक रियलाइजेशन आ गया कि भाई जितनी मात्रा में हम लोगों को NEP 2020 के बारे में सेंसिटाइज होना चाहिए, ओरिएंट होना चाहिए, उतनी मात्रा में हम हुए नहीं हैं. दिस इज द फर्स्ट फैक्चुअल रियलाइजेशन दे केम ओवर. और फिर हम जानते हैं कि सितंबर 23 में एक मिशन प्रोजेक्ट या मिशन स्कीम लॉन्च की गई, मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम. एंड उसके तहत ये NEP के 1 महीने में 2 प्रोग्राम हम करवा रहे हैं, राइट? दिस इज द बैकग्राउंड. एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव हियर? टू सेंसिटाइज एंड टू ओरिएंट आवर 15 lakh teachers of our country spread over in almost 1200 universities and
almost 45,000 colleges. This is the data of AISHE. हालांकि 1168 universities are there and some 45,000 colleges are there. So this is a large setup we are supposed to do that. ये तो उसका बैकग्राउंड हो गया, हम क्यों ये कर रहे हैं. मैं कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कैमरा ऑन रखें. मैं विदाउट एनी ह्यूमन फेस आई कांट गो अहेड. आप में से कुछ लोगों को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने कैमराज ऑन रखें. प्रफुल्ल कुमार मोहन जी, आप तो अपना कैमरा ऑन ही रखिए. आपका नाम जरा पॉपुलर है तो मुझे थोड़ी सहूलियत होगी. ये आपके नाम वाले बहुत बड़े नेता असम से रहे हैं, तो योर नेम इज क्वाइट पॉपुलर, तो मुझे थोड़ी सी आसानी होगी, है ना. तो जस्ट रिमेम्बर द डेट्स. 2020 में ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई और जुलाई 2020 से लेकर लगभग दिसंबर तक so many activities were taking place to popularize this NEP 2020, है ना. हमारे पीएम का भाषण हुआ, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर का हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोग थे जो इस पॉलिसी को लेकर बात कर रहे थे. और एक बात, एक सेंटेंस उस टाइम हम बार बार सुन रहे थे. We were listening to one sentence again and again for a good number of times. And what was that? वो सेंटेंस क्या था? This NEP 2020 is the first Indian made education policy. आप लोगों को कुछ, आप में से कुछ लोगों को शायद याद आता होगा कि यह पहली भारतीय शिक्षा नीति है. याद है आप में से कुछ लोगों को? इट वॉज टोल्ड अगेन एंड अगेन. तो फिर जब मैं इनको सुन रहा था तो some question raised in my mind. अगर if this was the first Indian national education policy, 1 minute. If this was the first Indian national education policy, then what about the previous policies? क्या इससे पहले जो पॉलिसीज आई थी वो इंडियन नहीं थी? वो क्या इंडियन द्वारा नहीं बनाई गई थी? क्या वो इंडिया के पीपल के लिए नहीं थी? एंड यू मस्ट नो व्हाट दोज पॉलिसीज वेयर. मैं 2-4 नाम आपके सामने रखूंगा, आपको याद आएगा. हमारे आजाद देश की पहली पॉलिसी, आजाद हिंदुस्तान की, आजाद भारत की, आजाद इंडिया की, वट एवर नेम यू कॉल इट, हार्डली मैटर्स. वो या हिंदुस्तान कहे, जो भी कहे. द फर्स्ट पॉलिसी वाज 1948-49 policy, that was University Education Commission. Let me share something with you so that it will be easier to you. 1 minute. एक मिनट. हाँ, is something visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Chalo. All right. Now I will arrange my screen such a way that I will be able to see you as well as my presentation. क्योंकि सिर्फ प्रेजेंटेशन को देख के मैं बात नहीं कर पाऊंगा, आपको देखना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है. एनीवे, ये है हमारे आजाद देश के कुछ कमीशन, कुछ पॉलिसीज दैट अपीयर्ड एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे कि पहली थी, दैट वाज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. उसको एजुकेशन पॉलिसी नहीं कहा गया था, प्लीज रिमेंबर. उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं कहा जाता था. दैट वाज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, and you can see here who was heading it.
इसको लीड कौन कर रहे थे? इसको लीड कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन. एट दैट टाइम ही वाज प्रोफेसर. आपको याद रखना पड़ेगा, एट दैट टाइम ही वाज प्रोफेसर एंड सर्विंग इन सम फॉरेन कंट्री. उसके बाद उन्हें यहाँ लाया गया, ये कमीशन बना. देन ही बिकेम फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड देन सेकंड प्रेसिडेंट. दीज आर द थिंग्स देयर. दैट वाज द फर्स्ट पॉलिसी और फर्स्ट एजुकेशन कमीशन वी कैन से. तो मेरे दिमाग में ये सवाल है, फिर राधाकृष्णन इंडियन नहीं थे क्या? और राधाकृष्णन तो हम जानते हैं, हम में से कुछ लोग जानते हैं कि he was known as the spiritual ambassador of India. हम उनके बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं कि when he was in Russia, you know what things happened there. And this is the man who laid the foundation stone of higher education in India. ये जो यूजीसी बनी है ना 56 में, इनके रिकमेंडेशन के द्वारा ही बनी. जो भी चीजें हुई ना वहां से बनी है. Then the second education commission came in 1964-66. इसके बारे में हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं. That is known as DS कोठारी कमीशन. आप में से कुछ लोग जानते हैं ना. ये पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग एजुकेशन बैकग्राउंड से होंगे तो वो अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उनको हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ना कंपल्सरी होता है. तो दिस पीपल नो वेरी वेल. दिस इज कोठारी कमीशन. इट इज कॉल्ड डीएस कोठारी कमीशन. और मुझे आपको ये बताना होगा कि 70 तक, 71, 72 तक हम जो 11th और 12th क्लास कहते हैं ना, हम में से कुछ लोग उसको जूनियर कॉलेज कहते हैं, कुछ लोग उसको इंटर क्लासेस कहते हैं, वो पहले नहीं थे. अगर कुछ लोग मुझसे ज्यादा सीनियर है इस ग्रुप में तो जानते होंगे कि उन टाइम्स, उन दिनों 10th पास होने के बाद देयर वाज one year course PUC that was known as प्री यूनिवर्सिटी कोर्स. अगर आप उसको क्लियर करते हो तो आपको सीधा फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलता था. तो माय पॉइंट इज 10 + 2 + 3, दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय दिस कोठारी कमीशन. देन उसके बाद आता है 1986 का नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. 1986 ये पॉलिसी 86 के नाम से ही ज्यादा परिचित है. मैंने खूब ढूंढा लेकिन मुझे ये कहीं भी नहीं मिला कि who was heading it, who was chairing it. But it came in 1986 when, if I'm not wrong, either Arjun Singh ji or Narasimha Rao ji was education minister there. Probably Arjun Singh ji was education minister there. 86 में आई. और हम जानते हैं कि इन 1989 राजीव गांधी लॉस्ट द पावर. आपको याद है ना, बोफोर्स के प्रकरण के चलते ही हैड टू लूज हिज पावर. सुधीर जी, मैं ये सारा आपके साथ शेयर करूंगा. डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग द थिंग्स. हम आपको बाद में दे देंगे, मैडम को भेज दूंगा. द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. तो मैं आपको चेहरे को देखना चाहता हूँ, आप कुछ करते हुए मैंने देखना चाहता हूँ. एनीवे, तो Rajiv Gandhi lost power in 1989 and we know that during next 3 years or 2 years we know that there was no stable government. एक साल के लिए वीपी सिंह साहब रहे और नेक्स्ट एक साल के लिए चंद्रशेखर साहब रहे, और somehow the things could not be brought to implementation level. तो जैसे ही meanwhile एक काम हुआ था 1990 में, इस 1986 के पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए एक आचार्य राममूर्ति कमेटी आई थी. आचार्य राममूर्ति कमेटी. एंड इन 1992 when PV Narasimha became the prime minister and the things were rather stabilized, then the process of implementing the things of 1986 began. लेकिन वो भी ऐसे ही नहीं हुई. बीच में एक प्रोग्राम एक्शन आ जाता है which was the result of a committee headed by Janardhan Reddy committee. अब ये जनार्दन रेड्डी कौन थे?
अगर आप में से कोई तेलंगाना से है, आंध्र प्रदेश से है, तो वो जानते होंगे ही वाज देन चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कमेटी बिठाई थी और उसके कमेटी के बाद ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन आ जाता है। इसने क्या किया इस कमीशन में, सारी चीजें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक दो मोटी मोटी चीजें बताऊंगा। ये जो नेट सेट एग्जाम है ना, ये इस कमेटी की देन है। हम लोगों के लिए बी प्लस जरूरी था, बाद में आपको नेट या सेट का एग्जाम क्लियर करवाना था। दिस वाज द रिकमेंडेशन ऑफ दिस पॉलिसी। उसके बाद हर एक स्टेट में ये जो नवोदय विद्यालय बना है ना, वो भी इसी कमेटी का रिकमेंडेशन था। माय पॉइंट इज दैट हियर स्टार्टेड द थिंग्स। देन वी केम टू अनदर इंपॉर्टेंट कमीशन। हम में से बहुत सारे लोग इस कमीशन को एजुकेशन कमीशन नहीं मानते हैं। आई रिपीट, हम में से बहुत सारे लोग इस कमीशन को एजुकेशन कमीशन नहीं मानते, बट इफ यू फाइंड टाइम to read the recommendations of National Knowledge Commission led by or headed by Sam Pitroda, you will find that most of the recommendations made there are about education. यह आया था 2006 to 2009। ये 3 साल के बीच इसने काम किया, और सैम पित्रोदा को कौन नहीं जानता। हम में से लगभग सारे लोग सैम पित्रोदा को जानते हैं। पिछले 2 महीने पहले थोड़े से वो कंट्रोवर्शियल भी बने थे उनकी एक स्टेटमेंट को लेकर, बिकॉज ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ओवरसीज कांग्रेस। हम जानते होंगे, है ना, इनहेरिटेंस टैक्स, ये सारी चीजें बीच में आ गई, बट ही वाज द मैन। अगर इस कमीशन के अगर आप रिकमेंडेशन देखते हैं, तो यू विल नॉट से दैट एनईपी 2020 इज एंटायरली न्यू पॉलिसी। मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं। इसका डॉक्यूमेंट ज्यादा बड़ा है नहीं, बहुत छोटा है, 20-25 पेजेस का। बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी है जिस चीजों को आगे जाके एनईपी 2020 में एनालाइज किया गया है। इसका एक रिकमेंडेशन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इस कमिटी के बाद, इस कमीशन के बाद, नेशनल नॉलेज कमीशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि हर एक स्टेट में कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि 2009 के बाद हर एक स्टेट में एक न एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। कई जगह तो ज्यादा है, लेकिन कम से कम एक बनी, या तो नई बनी है या एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी को अपग्रेड किया गया है। किसी ने हैंड रेज किया था, यू वांट टू आस्क समथिंग? हरे नारायण जी, हेलो। गलती से हो गया तो मैं इग्नोर करता हूँ। हाँ, असदुल्ला जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? It is by mistake, sir. It is by mistake. कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई नो इन ऑनलाइन थिंग्स ऐसे बड़े बड़े कामों में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती है। आई डोंट माइंड दैट। चलो एनीवे, तो ये सीबीसीएस इन्हीं की देन है, ये सेमेस्टर प्लान इसी की देन है, इंटरनेशनल ऑफ हायर एजुकेशन इन्हीं की देन है, छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज होने चाहिए इन्हीं की देन है। बहुत सारी चीजें इसमें। ये आता है 2009 में, और फिर आता है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब मुझे जवाब दीजिए जो मैंने सवाल शुरू में उठाया था, क्या ये सारे लोग इंडियन नहीं थे? राधाकृष्णन इंडियन नहीं थे, कोठारी साहब इंडियन नहीं थे, आचार्य राममूर्ति जी इंडियन नहीं थे, या फिर जनार्दन रेड्डी जी नहीं थे, या फिर सैम पित्रोदा नहीं थे? सैम पित्रोदा आज हिंदुस्तान में रहते नहीं है, आज के हालात में नहीं रहते। ऑल दीज पीपल वेर इंडियन। देन one minute. Then how can we say that this is the only policy which is Indian in true nature? No. ये सारे लोग इंडियन थे और सारे लोगों ने इंडिया के लिए ही पॉलिसी बनाई थी। लेकिन एक बात को तो मैं अग्री करूंगा, वन थिंग आई वुड स्ट्रांगली असर्ट, व्हाट, अगर कोई मुझे पूछे कि इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव आप एक लाइन में बताइए, एनईपी 2020 का एक लाइन में डिस्क्राइब कीजिए, तो आई विल से दिस पॉलिसी strives or attempts or tries to decolonize our education system, particularly higher education system.
Remember, and this is my argument that I am going to put before you. ये मेरा आर्गुमेंट है कि ये पॉलिसी हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था को डीकोलोनाइज करने की बात करती है। डीकोलोनाइज। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात को मैं शुरू में क्लियर कर दूं। हम जैसे कहते डिस्क्लेमर कहते हैं ना, डिस्क्लेमर। कोई मूवी शुरू होती है तो एक डिस्क्लेमर आ जाता है। ऑल द कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट्स इन दिस मूवी आर fictitious. They have no resemblance to the live person, live or dead person. And if they do have any resemblance, that should be considered as a coincidence only. इसी प्रकार का एक डिस्क्लेमर मैं शुरू में बनाना चाहूंगा। आई एम नाइदर, आई कैन से, मैं इस पॉलिसी को ना क्रिटिसाइज करता हूं ना उसको प्रिफर करता हूं। आई एम जस्ट पुटिंग द फैक्ट्स फॉर यू, जस्ट पुटिंग द फैक्ट्स, एंड दिस फैक्ट्स आई हैव come to know, the facts I have come to conclude or arrive at after reading the document for a good number of times. Then other circulars that came in light after this policy, after listening to people like you, and after writing some papers on NEP 2020, I have formed my opinion, and that I am putting before you. I never say, or I would never say, that what I am saying is the only truth. मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो पत्थर की लकीर है, इसके सिवाय या इसके अलग कुछ नहीं है ना। एवरीथिंग हैज और मे हैव सम डिफरेंट परसेप्शंस आल्सो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो कहने का मतलब कि जो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करें, और डिसएग्री करते हैं तो मोस्ट वेलकम। डिसएग्रीमेंट इज अ वंडरफुल थिंग, है ना। एक बाग के सारे फूल एक कलर के तो नहीं हो सकते, एक रंग के तो हो नहीं सकते, उसकी खुशबू भी अलग रहेगी उसकी। आपके अख्तर साहब का एक बहुत बड़ा पोएम है ना, आफ्टरवर्ड यू कैन लिसन टू दैट पोएम, वेरी वंडरफुल पोएम बाय जावेद अख्तर साहब। एनीवे, so in today's session I will put before you three things. Who colonized, why colonize, what was the result of colonization? One thing. First part will have three things: who colonized our education system, why it was colonized, and what was the result of that colonization. One thing. Second thing, or second part, what moves, what initiatives, what provisions this policy has to decolonize the things. Second part. And third part, what challenges in this mission are there, in the way of this mission are there. Now let me come to next slide. इस बंदे का चेहरा तो उस तरह नहीं जानते, लेकिन इस बंदे का नाम हम में से हर कोई जानता है ना। By appearance, naturally he is an Englishman or European. Naturally, है ना। ऐसा पहरा तो हम कभी पहनते नहीं है। He is a European, and in Europe he is British, and he is Lord Macaulay, Thomas Babington Macaulay. नाम तो सुना होगा आपने, जैसे किसी मूवी का डायलॉग है ना, राहुल, नाम तो सुना होगा। इन द सिमिलर वे इस बंदे का नाम हम में से हर कोई जानता है। हर कोई पढ़ा लिखा आदमी मैकाले का नाम जानता है। अब मैं तो आगे जाके कहता हूं, शायद इस जेंटलमैन को मरे हुए भी लगभग मेरे ख्याल से 150 साल या उससे ज्यादा वक्त गुजर चुका होगा। 150 साल या उससे ज्यादा। लेकिन आज भी poor person will be lying in some coffin in some graveyard, है ना। उसकी डेड बॉडी किसी कॉफिन में, किसी ग्रेवयार्ड में इंग्लैंड में पड़ी होगी। लेकिन आज भी हमारे शिक्षा व्यवस्था में कुछ भी गलत होता है या कुछ भी नया नहीं होता है तो इस बंदे के सर पर हम ठिकरा फोड़ देते हैं कि जो भी बुरा काम हुआ
इसने किया, है कि नहीं? उसने सिर्फ क्लार्क बनाने की फैक्ट्रीज हमारे यहाँ शुरू की, उसने ये किया, उसने वो किया. दीज आर द थिंग्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट, है ना? यही कहते हैं ना हम बहुत अच्छे थे लेकिन इस बंदे ने सारी चीजें बिगाड़ दी. लेट दैट बी. नाउ दिस कोट, it is a cutting from some paper. It is from 2nd February 1835. मैं ये भी बता दूं आपको कि this cutting is always questioned. It is always questioned. क्यों क्वेश्चन की जाती है? कि ये राइटिंग में कहीं मिलता नहीं. ये जो यहाँ लिखा है ना, ये राइटिंग मतलब किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये मिलता नहीं. जो लॉर्ड मैकॉले के मिनट्स फेमस है ना, मिनट्स, उसमें ये कहीं नहीं है. लेकिन परहैप्स इट इज एन एड्रेस गिवन बाय लॉर्ड मैकॉले टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे. 1835 के हालात समझ लीजिए, आज से लगभग 190 ईयर्स एगो, है ना? लगभग 190 ईयर्स एगो, 190 साल पुरानी कहानी है. तब हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, राइट? बिकॉज आफ्टर 1857 गदर और राइज एंड आफ्टर क्रशिंग दैट, इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर गवर्न बाय क्वीन और किंग ऑफ इंग्लैंड. उससे पहले हमारा हिंदुस्तान ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट नहीं था. 1857 के पहले. इस चीज को हमें समझना पड़ेगा. आप में से कुछ लोगों का अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है तो दे नो वेरी वेल. दिस इज द डिवाइडिंग लाइन. इंडिया बिफोर 1858 एंड इंडिया आफ्टर 1858. ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ पब्लिक एंटरप्राइज ऑफ इंग्लैंड. मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, उसी प्रकार की ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, विच केम टू इंडिया 1603 और समथिंग लाइक दैट. तो कंपनी सरकार के टाइम में, इसको कंपनी सरकार कहते थे, है? उस टाइम में हिंदुस्तान में संस्कृत और पर्शियन के पढ़ाई पे सालाना 1 लाख रुपया खर्च ये ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी. Now you will ask me where from you brought this amount. इसके मिनट्स, मैकॉले के मिनट्स आप गूगल कर लेना, मिल जाएंगे. हार्डली 8 और 9 पेज डॉक्यूमेंट इज देयर, उससे ज्यादा है नहीं है. आप भी पढ़ सकते हैं, हमें पढ़ना चाहिए. तो 1 लाख रुपए सालाना वो खर्च करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी करती है. किस पे खर्च होता था ये? जो बच्चे पर्शियन या संस्कृत में पढ़ते थे उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता था और कुछ किताबें ट्रांसलेट करके वो छपाई जाती थी. एंड समवेयर द कंपनी सरकार केम टू नो दैट वी आर वेस्टिंग द मनी. ना कोई पढ़ना चाहता है, ना ज्यादा कॉलेज है. वो कहता है, वो उस मिनट में कहा है कि उस टाइम में सिर्फ 2 कॉलेज थे. बनारस के पास कोई कॉलेज था जहां संस्कृत में पढ़ाई होती थी, और दिल्ली के आसपास कोई कॉलेज था जहां पर्शियन या अरेबिक की पढ़ाई होती थी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एट दैट टाइम AMU वाज नॉट देयर. मेरे ख्याल से AMU 1870 या 75 का है, राइट? अगर यहाँ कोई है AMU का तो वो मुझसे ज्यादा बेटर जानता है कि AMU वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं. तो मैं कह रहा था कि only 2 centers of learning were there and very few students were there and such huge amount was spent on that education. आज इस अमाउंट को ह्यूज कहना जरा गलत होगा. क्यों? आज 1 लाख तो किसी भी बंदे का सैलरी है. तो एनीवे, तो टू रिव्यू द थिंग्स, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड दिस लॉयर. Lord Macaulay was not an educationist. He was not a vice chancellor. He was a lawyer by profession. And the committee was Committee on Public Instruction. उस कमिटी का नाम कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं था. उस कमिटी का नाम क्या था? कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन. लोगों को जो शिक्षा दी जानी है उसके बारे में सोचने के लिए
ये कमेटी थी। और ओके, रीता मुनि, यू वांट टू आस्क समथिंग? हरि नारायण जी, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको कुछ पूछना होगा शायद। हेलो, चलो कोई बात नहीं, इसको भी हम इग्नोर मार के आगे चलते हैं। तो एंड समहाउ दिस मैन केम टू नो दैट वी आर वेस्टिंग द मनी। तो वो सिफारिश क्या करता है, फिर वो रिकमेंड क्या करता है लॉर्ड मैकाले कि भाई अब हम इंस्टेड ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन, इंस्टेड ऑफ गिविंग एजुकेशन इन इंडियन लिटरेचर एंड इंडियन साइंस, we will give education of European sciences and European literature, and in Europe particularly English one. क्यों? मैं इस चीज को थोड़ा सा दोहराता हूं। उसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो कि हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं है ये बर्बाद पैसे खर्च करने में। तो हम क्या करें, इससे पहले हम यहाँ के लोगों को यूरोपियन साइंसेस पढ़ाएंगे और यूरोपियन लिटरेचर पढ़ाएंगे। लेकिन उसका हिडन एजेंडा इस कोट में दिया जाता है। व्हाट इज दिस कोट? ये इसका मैं थोड़ा आपको सार बताऊंगा, एसेंस बताऊंगा। ये कोट कहता है कि इंडियंस आर वेरी टैलेंटेड पीपल, दे हैव स्ट्रॉन्ग मॉरल्स विद देम, दे हैव caliber with them, and the backbone of this thing is their ancient education system. इससे तो मैं डिसएग्री करूंगा। I also disagree with so many things. तो ये क्या कहता है कि according to him, according to Lord Macaulay, the backbone of Indian moral and cultural system was the ancient education system of that time. अब मुझे बताइए वो टाइम में क्या हालात है हिंदुस्तान में? या तो गुरुकुल हुआ करते थे या फिर मदरसे चलते थे, है ना? याद रखना, ये 190 साल पुरानी बात है। या कोई वेदशाला होती थी या कोई गुरुकुल होता था। गुरुकुल थोड़ा सिटी से बाहर था, या वेदशाला थी तो किसी मंदिर के पास बैठती थी, अगर मदरसा रहा होगा तो किसी मस्जिद के पास बैठता था। लेकिन वो कहता है कि ये शिक्षा इनको मॉरली स्ट्रांग बनाती है, और वो कहता है हम इसको ऐसी शिक्षा देंगे जो शिक्षा इन लोगों में ये सोच पैदा करेगी कि जो भी फॉरेन का है वो उनके अपने से बेटर है, बेहतर है। वट एवर इज फॉरेन इज ग्रेटर देन देयर ओन। एंड वो कहते हैं कि उसके बाद वंस वी ब्रेक देयर सेल्फ स्टीम, वंस दे लूज देयर सेल्फ स्टीम, देन वी विल बी एबल टू रूल देम। ये एजेंडा उनका कहा जाता है। दिस इज वन थिंग। नाउ दिस इज फ्रॉम लॉर्ड मैकॉले's टेक्स्ट। हम जिसको मिनट्स कहते हैं ना, ये मैंने एग्जैक्टली उस मिनट से लिया है। एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग कि इसके मिनट्स लगभग 9 या 10 पेजेस के, ज्यादा नहीं है। लेकिन उसमें से मैंने ये सिर्फ 3 सेंटेंसेस उठाए। आई हैव दैट कॉपी विद मी। ये सिर्फ 3 सेंटेंसेस मैंने वहां से कोट किए। व्हाई? बिकॉज these 3 sentences underline many things. पहला जो कोट है वो देख लेना, and perhaps some of you must have read it. वो क्या कहता है? I have never found one person among them, among Indians, who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. ये comparison करता है, please. He holds a comparison. Comparison between what? The entire literature of India on one hand, and only one shelf of a good European library is equal. मतलब अपने ज्ञान को लेकर उसके दिमाग में कितना अहंकार था। मैं इसको सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहूं कि अहंकार कहूं मुझे पता नहीं, लेकिन that one thing is there. Second thing, he has the same type of feeling for his own language, that is English. What he says, English is better worth knowing than Sanskrit or Arabic, and that the natives means Indians, the natives are desirous to be taught English.
वो कहता है कि संस्कृत और अरबिक पढ़ने से तो कई अच्छे बेटर है कि हम इंग्लिश इन लोगों को पढ़ाए। और वो आगे कहता है कि खुद इंडियन चाहते हैं कि वो इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश पढ़े लिखे। ये बात सही है, मैं इसको आगे जाके बताऊंगा। एंड द लास्ट quote, which is most often used. Finally, what he says, what should we do? He says, we should form a class. We should form a class who may be interpreters between us and the millions we govern. 1835 के आसपास भी हमारी आबादी मेरे ख्याल से 20-25 करोड़ तो रही होगी, है ना। हमने बाकी कई प्रोग्रेस किया हुआ ना हुआ, लेकिन इस मामले में हमने बहुत प्रोग्रेस किया है। हम आज टॉप पे हैं, लेकिन उस टाइम भी कम नहीं थी। एंड रिमेंबर व्हाट ही सेज, ही नीड्स अ क्लास ऑफ इंटरप्रेटर्स between us, means foreign English officers, and the millions illiterate people, illiterate Indians. एक बात को मैं आपके सामने कहूंगा और आगे बढ़ूंगा कि रिमेंबर, at any point of time हिंदुस्तान में ब्रिटिश लोगों की तादाद, यूरोपियन लोगों की तादाद कभी भी 5 लाख से आगे नहीं थी, नेवर। 150-200 साल राज किया, तब भी जो जिसको हम ब्रिटिश ऑफिसर कहेंगे, यूरोपियन ऑफिसर कहेंगे, उनकी तादाद 5 लाख से ज्यादा कभी नहीं थी। एंड दे वर गवर्निंग दिस कंट्री ऑफ करोड़। मेरे ख्याल से गांधी जी के टाइम में भी 33 करोड़ थे, उसके बाद तो आबादी बढ़ती गई। मेरे कहने का मतलब यह था कि with this small number of English people, they ruled such a vast country. And see, the next line is very important. A kind of class of persons, Indian in blood and color. दिखने में तो इंडियन नहीं गई। We want to form a class who may be Indians in blood and color, but English in texts, English in opinions, English in morals, and English in intellects. हमारा कलर तो चेंज नहीं होगा, हम इंडियन ही रहेंगे। हमारे नसों में खून तो इंडियन ही बहेगा, लेकिन हमारी सोच, हमारी टेस्ट, हमारा ज्ञान पूरी तरह इंग्लिश होगा। एंड माय डियर फ्रेंड, इन दिस मिशन लॉर्ड मैकॉले गॉट मोर देन व्हाट ही एक्सपेक्टेड। हम कभी कभी क्या करते, हमने 100% हमें करना था, 90% मिल गया, लेकिन इसको डबल से ज्यादा मिल गया। He succeeded in making Indian what he wanted. Now, what happened because of that? कॉलोनाइज हमें किसने किया कॉलोनाइज? लॉर्ड में कॉलोनी किया। क्यों किया? ये उसको करना था। एंड रिमेंबर, शिक्षा इज द बेस्ट फॉर्म, बेस्ट टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी सोसाइटी। आपको कल्चर फिल्में देखा, हम सुधरते नहीं है। शिक्षा देख, अगर शिक्षा से हम सुधरते, बहुत जल्दी बदलाव हो जाए, 20-25 साल में सब कुछ हो जाएगा। एंड सी व्हाट हैपन, आई जस्ट पुट इन, मैं इसको थोड़ा सा इसको एंटर मारता हूं। द ब्रिटिश राज सक्सीडेड इन कन्विंसिंग दैट द सोशल, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेर ऑब्सोलीट अगेंस्ट देयर ओन। ऑब्सोलीट मतलब क्या? यूजलेस। ये हमें समझाने में वो सफल हुई कि हमारा जो भी हमारा सोशल ऑर्डर था वो टाइम का, जो भी हमारा एजुकेशनल सिस्टम था, या जो भी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था, वो बेकार था। ये हमें उन्होंने समझाया। कैसे समझाया? लिबरल एजुकेशन के नाम पे हम यूरोपियन साइंसेस, यूरोपियन सोशल साइंस पढ़ने लगे। आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा। सुधीर जी, आपका सब्जेक्ट कौन सा है? अनम्यूट कीजिए आप हम लोग। Sir, sociology, but basically I am Very from nice. Very sociology. मतलब अब आपकी सर्विस लगभग 25 साल हो चुकी होगी, 20 या 25 साल, और उसके पहले आपने पीजी किया होगा, यूजी किया होगा। नेचुरली सोशियोलॉजी कुड हैव बीन योर टॉपिक, राइट, सब्जेक्ट। तो आपको पढ़ाया गया है कि हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? अगस्त कांट। August Comte.
पॉलिटिकल साइंस वाले को क्या पढ़ाया गया? विथ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? Aristotle. Aristotle, right? The student of economics were taught, who is father of economics? Adam Smith. The history students were taught, who is father of history? Herodotus. है ना? मतलब हम भूल ही गए कि हमारे पास भी कोई राज चलाते थे, उनके पास भी कुछ ना कुछ चीजें रही होगी जिसके तहत वो राज चलाते थे, या हमारे पास भी मार्केट नाम की कोई चीज रही होगी जिसके तहत उस राज्य की, उस स्टेट की या उस संस्था की इकोनॉमी चलती होगी। हमारे पास भी कुछ लिखने वाले थे जो हिस्ट्री लिखते थे, उसका भी कोई ना कोई रहा होगा, लेकिन ना, हम भूल गए या हमें भूलाने के लिए मजबूर किया गया। अब शायद आईकेएस में यही सारी चीजें आपको सुननी पड़ेगी, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मीन्स दिस इंग्लिश एजुकेशन मेड अस बिलीव दैट एवरीथिंग दैट वाज इंडियन वाज गुड फॉर नथिंग। हमारे पास कुछ था ही नहीं। आपको अगर आप में से कोई इंग्लिश लिटरेचर का है कोई यहाँ? इज देयर समवन हु बिलोंग टू इंग्लिश लिटरेचर? Sir, I have done my PG. Sir, done my PG in English वेरी literature. नाइस। आपको एक फ्रेज आपको याद होगी, एंड दैट फ्रेज विल एक्सप्लेन द थिंग इन बेटर वे। व्हाइट मैन बर्डन, आपने सुना है ये? व्हाइट मैन बर्डन। Yes, sir. यस। जनार्दन जी, व्हाट इज दैट व्हाइट मैन बर्डन? अपने आपको अनम्यूट करना है, मुझे लेट अस हैव डायलॉग। व्हाट इज व्हाइट मैन बर्डन? जनार्दन जी, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? कोई आप में से एक ही व्यक्ति माइक ऑन करा दे रहा है, जी को विल बी देयर। हाँ, गौरी, गौरी जी आप बताइए। हाँ, Yes, sir. They feel that it is the responsibility of the white man to enlighten others, other races. okay. Now you are the man of brevity, you are the man of few words. I would like to extend it. मैं थोड़ा उसको खींच के बताऊंगा उसको। ये यूरोपियंस सारे दुनिया में फैल गए, पर्टिकुलरली they dominated Asia and Africa, right? Most of their colonies were in Africa and Asia. Of course, America was their largest colony, Yes. but America was the first to get freedom. Yes. ये भी हमें समझना पड़ेगा। लेकिन जब ये दुनिया में अलग अलग हिस्से में गए तो इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम आप पे राज करने आए हैं या हम आपको लूटने आए हैं, है? कभी नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि दुनिया में बहुत इग्नोरेंस है, दुनिया में लोग सिविलाइज नहीं है, दुनिया एक अंधकार युग में रह रही है, जी रही है। ईश्वर ने हमें चुना है कि भाई दुनिया में जाइए और लोगों को पढ़ाइए, लिखाइए, उनको सिविलाइज बनाइए। दिस इज द बर्डन गॉड हैज गिवन ऑन आवर शोल्डर, और हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हम आपको लूटने नहीं आए हैं, प्लीज रिमेंबर। दैट इज नोन एज व्हाइट मैन बर्डन। ये कॉन्सेप्ट थी, ये थ्योरी थी जो दुनिया में अपना कॉलोनाइजेशन जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते थे। Yes. राइट? Yes, sir. So see, that is what this English education did. इंडिया में कुछ है ही नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, हालांकि उस कोर्ट को मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ड्रॉप किया। यू नो व्हाट वाज द पिक्चर ऑफ इंडिया इन यूरोपियन कंट्रीज? उनका परसेप्शन क्या था इंडिया को लेकर? अगर मैं सारी चीजें बताने लगूंगा तो ये कंप्लीट नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन लेट मी टेल यू, टू देम, टू द यूरोपियन वर्ल्ड, इंडिया वाज द कंट्री ऑफ बेगर्स, थ्यूज एंड नेकेड साधुस, राइट? फॉर देम इंडिया वाज द कंट्री, मैं आपको आसान भाषा, भारत में क्या है वो कहते थे? भारत में भिखारी है, भारत में चोर है, और भारत में नंगे पुंगे साधु है, और भारत में रोड साइड सपेरे हैं। मीन्स दिस पिक्चर दे हैड इमेजिन्ड ऑफ इंडिया। मतलब
हम बहुत अनसिविलाइज है, हम बहुत बैकवर्ड है, हमारे पास कुछ नहीं है, अब इन्हें पढ़ाने हमें जाना है, इनको सुधारने जाना है, दिस पीपल आर जंगल पीपल, वी वांट टू सिविलाइज देम। इस थ्योरी को लेकर वो आगे बढ़े। एक बात वो हो गई। दूसरी बात, व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, रिमेंबर कॉलोनाइजेशन। 1835 में ये रिपोर्ट आया, 20 साल गुजर गए बीच, मीन वाइल वो अपराइजिंग आया 1857 का, है ना। 1857 में आप उसको अपराइजिंग कहे, म्यूटिनी कहे, गदर कहे, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहे, या हम आप पे छोड़ते हैं। जैसे उस वॉर को क्रश किया गया, इंडिया बिकेम द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया बिकेम हेड ऑफ द स्टेट, है ना। एंड उसी साल 1858 में इंडिया में पहले 3 विश्वविद्यालय बनते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, राइट। ये पहले 3 विश्वविद्यालय हैं हिंदुस्तान की। और बाद में फिर धीरे धीरे आबादी बढ़ती है, मतलब मेरे ख्याल से बाय 1947 वी हैव हैड सम 20 और 16 यूनिवर्सिटीज, परहैप्स 20। हमारे पास शायद कुछ 20 विश्वविद्यालय थे, लेकिन कॉलेजेस बहुत सारे थे। जैसे कि प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता था, प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ मद्रास था, बम्बई में 2-4 कॉलेजेस बने थे, है ना। बनारस में कॉलेज बना था उससे पहले, या फिर पुणे में फर्गुसन कॉलेज बना था। तो व्हाट हैपेंड, देयर केम अ ग्रुप ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, जो यंग पीपल, जो यूथ इस विश्वविद्यालय में या इस कॉलेज में पढ़े थे। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, फर्गुसन कॉलेज के ग्रेजुएट, प्रेसिडेंसी कॉलेज के ग्रेजुएट, एक ऐसी एक जनरेशन पैदा होगी। लेकिन वो जनरेशन की सोच क्या थी, जो मैकॉले ने एक्सपेक्ट किया था। क्या सोच थी? रिमेंबर, ओवर द इयर्स द इंग्लिश एजुकेटेड ग्रुप्स ऑफ इंडियंस not only began to advocate the British Raj, उसकी हिमाकत करने लगे, उसकी हिमायत करने लगे, उसकी वकालत करने लगे ब्रिटिश राज की। ब्रिटिश राज अच्छा है। आपको पता है, शायद आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस के, कि उस टाइम में एक ऐसा वर्ग था जो समझता था कि ब्रिटिश राज इन इंडिया is the part of divine plan, right? Some people were there who used to believe that British rule in India is the part of divine plan. ये ईश्वर की इच्छा थी कि वो हमारे पास आए, अच्छा हुआ वो आ गए, ऐसा भी सोचने वाले लोग थे। मैं पीछे की बात का क्यों करूं, जब 1942 में हमारा मूवमेंट थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया, एग्रेसिव हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया, उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश यहाँ से चले जाए, वो नहीं चाहते थे कि हम आजाद हो। दे वेर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्टिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैम। मेरा कहने का मतलब यह है कि बिकॉज ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, देयर केम अ ग्रुप ऑफ इंडियंस, एनलाइटेंड इंडियंस इन इन्वर्टेड कॉमर्स, and these people began to advocate, वकालत करने लगे, ब्रिटिश राज अच्छा करने लगे, but remember, but also began to hate their own social and cultural heritage. ये भी हुआ। हम अपने आप को कोसने लगे, ये कोई देश है, यहाँ कोई रहना चाहता है, so on and so forth. And last लिखना, and demand changes modeled on the British system. जैसे मैंने कहा कि 3 विश्वविद्यालय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए, लेकिन जो कॉलेजेस बने हैं उस कॉलेजेस को बनाने की डिमांड इंडियन लोगों की ज्यादा थी। प्लीज रिमेंबर, कोलकाता का प्रेसिडेंसी कॉलेज है, उसको बनाने के लिए ज्यादा मेहनत राजा राम मोहन राय ने ली थी। या जो पुणे में फर्गुसन कॉलेज फेमस है, पुणे में, आपने से कुछ लोगों को पता होगा, उसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? आगरकर जी थे, और उसके फाउंडर कौन थे? लोकमान्य तिलक जी थे। मतलब some Indians wanted that they should have English education. मेरे ख्याल से डीएवी एक है ना, डीएवी नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, दयानंद एंग्लो वैदिक,
Yes, sir. right? What Anglo-Vedic? What is this? Anglo and Vedic. This combination of the Yes. English language And if and I'm Indian. not wrong, that was established before independence. Yes, sir. कहने का मतलब ये कि हम लोग चाहने लगे कि हमें अंग्रेजी शिक्षा मिल जाए और हम लोग चाहने लगे कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी उनके तरह हो जाए. लॉर्ड बेंटिक ने एक कानून लाया अगेंस्ट टू बैन द सती प्रथा, राइट? एंड हु वाज आस्किंग फॉर इट? Raja Rammohn Roy. Ram Mohan Roy. Remember, British never wanted to interfere with your social structure, never. उनका काम बहुत, एजेंडा उनका बहुत क्लियर था सर, डे वन से. जिस दिन वो हिंदुस्तान में आए वहीं से उनका एजेंडा क्लियर था, इसको लूटना है और वापस जाना है. नो ब्रिटिश ऑफिसर और नो ब्रिटिश केम टू इंडिया टू सेटल हियर, प्लीज रिमेंबर. हालांकि मैं शुरू में कहता हूं, अभी कहता हूं मैं आपको, द फॉरेनर्स दैट केम आफ्टर 1100 BC, इसमें भी हमारे पास इस्लामिक इन्वेडर्स है. ये सल्तनतें जितनी भी हुई है दिल्ली में, ये खिलजी हो, गुलाम हो, या जो भी हो वहां की सल्तनतें, या फिर तुगलक वंश हो, या फिर बाद में मुगल एम्पायर हो, ये जितने भी थे, इन लोगों में और ब्रिटिश यूरोपियन लोगों में एक बुनियादी फर्क है. British never took this land as their own, never. लेकिन मुस्लिम रूलर की बात कीजिए आप, शुरू के जो 10th या 11th सेंचुरी में जो आए ना, अगर उनको छोड़ा जाए तो बाकी सारे लोग यहीं आ गए, यहीं पैदा हुए, यहीं मर गए, शादियां यहीं की उन्होंने. नो वन वेंट बैक. बाबर मरा ही, उसकी कब्र है अफगानिस्तान काबुल में, लेकिन वो मरा ही है. सारे मुगल शहंशाह, उनमें से तो बहुत लोगों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है. नो मुगल एम्परर वाज प्योर इन ब्लड. अब मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं, है ना? या उसकी माँ कभी हिंदू थी या कोई हिंदू था, सम पार्ट वाज देयर. एंड रिमेंबर, उन्होंने मेमोरियल बनाए, यही रखे हैं. ताजमहल बनाया, उठा के तो नहीं लेके गए कोई. लाल किला आगरा में बनाया, दिल्ली में बनाया, यही है. Whatever monument they created, they left it here. लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया? ये रेलवेज बनाए, हमारे सुविधा के लिए रेलवेज नहीं बनी थी, प्लीज रिमेंबर. ये टेलीफोन हमारे लिए नहीं बनाए थे. ये इतने जो बंदरगाह दिखते हैं ना आपको, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये जितने भी है, they were not for us, they were for their transport. अब आजाद होने के बाद ये उठा के नहीं ले जा सकते, इसलिए यहाँ रखे हैं. अगर ये रेलवे इंजन को उठा ले पाते तो वो भी उठा के ले जाते. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यूरोपियन रूलर्स और यूरोपियन कॉलोनाइजर्स and Muslim rulers. Let that be. My point was only this much, that we Indians wanted such kind of education. This was the result of colonization. उसका मतलब क्या हुआ? हम अपने अतीत को भूल गए. Now here my first part comes to an end. Who colonized it? Macaulay colonized it. Why colonize it? He wanted to rule us. He wanted to dominate us. He wanted to loot us. And what was the result of that? A group of Indians came there who began to advocate British Raj, who began to head themselves, their own order, and who wanted English social order there. अब आगे बढ़ते हैं इस पॉलिसी की तरफ. Here begins my second part. उम्मीद है कि मेरे पास वक्त नहीं बचेगा. Anyway, how? I told you in the very beginning, this policy attempts at decolonizing our education system. हम कॉलोनाइज कहाँ हुए हैं? हमारी किताबों में नहीं, हम मेंटली कॉलोनाइज थे, राइट? अरे कबीरी जी, मैं आपको म्यूट करता हूँ अब यहाँ से. चलो कोई बात नहीं. आई एम मास्टर हियर नाउ. आई एम द स्पीकर ऑफ द हाउस. I am the speaker of the house. I will mute you. I will monitor the proceeding of the house. मैं किसी को स्पंज भी कर लूंगा.
That power I have with me. Sir, if anyone disturbing a lot, Not, you not, can not. remove also, sir. Yes, I muted him. I muted him. No, and ये चलता रहता है अपना भाई साहब. ये these things Okay, take sir. place. I don't mind it. I was just Please, telling please, in sir. light mode. No, if disturbing again and again, then you can. No, it's okay. चलो. अब कैसे? I was telling you that our minds were colonized through education. What I say? Our mental colony is even today there. अब मुझसे कोई पूछ सकता है कि भाई हम 1947 में आजाद तो हो गए, राइट? मानते हैं ना प्रफुल्ल जी? Do you believe that we became free in 1947? Yes. मानते हैं ना? Do you agree with me? आप में से कितने लोग मानते हैं कि हम 1947 में आजाद हुए? Yes, sir. कुछ जेंटलमैन, कुछ इंटेलेक्चुअल पीपल नहीं मानते. Let that be. Let their ideology be with them. So we were only physically No. we got independence, but somehow still we are carrying with the rule, even rules and That is what regulations. I'm telling you. Whatever they made in 1980s or 1890s or 1935. That is what I'm taking you to. लेकिन चलो देश आजाद तो 1947 में हुआ, इसको तो हमें मानना चाहिए. But I say that was political freedom only. That was, or to put in the exact words, that was the transfer of power only. उधर लेके गए थे ना मेरे ख्याल से. उधर लेके गए थे ना वो. नहीं, उधर लेके गए हैं मेरे ख्याल से. हाँ. 1 मिनट. हाँ, 1 मिनट. 1 मिनट. एक मिनट. एक सेशन चल रहा है. क्लियर रखा मैंने यहाँ इसको. को नंबर चढ़ाने के लिए लेके गए हैं. एक मिनट. वेट अ मिनट. हाँ, प्लीज. सेशन चल रहा है ऑनलाइन. सर आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी. one minute. I know. And I'm not watching anything wrong. So it hardly matters. एक मिनट है. नहीं होगा, कहने का रखा था मैंने. इसमें क्या होगा? रेडी तो था. बच्चन,
Are you there? आप Yes, वहीं sir. हैं Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I am here. Yes, Okay. sir. Yes, sir. तो मैं ये कह रहा था कि 1947 took place only the transfer of power. The Governor General of British India handed over the political power to the interim Prime Minister of India. Nehru was interim Prime Minister there. He was not full-fledged Prime Minister there. That took place there. And remember, at that time, such kind of decolonization of everything was not possible at all. ये संभव भी नहीं था. क्यों संभव नहीं था? उसके लिए दो तीन कारण है. एक, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, जो भी लीडिंग फ्रीडम फाइटर मैं कहता हूं, जो पहले रो में आते हैं, आप गांधी जी का नाम लीजिए, आप नेहरू जी का नाम लीजिए, आप अंबेडकर जी का नाम लीजिए, आप जिन्ना जी का नाम लीजिए. रिमेंबर, most of them had their higher education in England itself. ये सारे अमेरिका से या इंग्लैंड से लॉ की डिग्री करके आए थे. So naturally they were under the strong influence of that kind of society, that kind of education there. है ना? So how can we expect from them that up to 14th August they were colonized mentally and on 15th August they are decolonized? It was not possible at all. मैं तो उसके आगे जाके कहता हूं कि our constitution, which is the best among the all, is under the strong influence of European constitutions, European and American constitution. Why? Because even Dr. Ambedkar had got his education there. And we didn't have our own model. हमारे पास अपना कोई संविधान का कोई मॉडल था नहीं हमारे पास. So naturally that influence was bound to be there. वो तो होना ही था. और रिमेंबर, ये पीढ़ी हमारे साथ, ये फ्रीडम फाइटर की पीढ़ी हमारे साथ लगभग 1980s तक थी, है ना? इवन पीवी नरसिम्हा राव वाज फ्रीडम फाइटर, इंदिरा गांधी वाज फ्रीडम फाइटर. तो वी कांट एक्सपेक्ट देम टू डीकॉलोनाइजिंग. दूसरी बात, ये जो पॉलिसी बना रहे थे, इन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने वाली ब्यूरोक्रेसी भी तो उसी शिक्षा पद्धति से आई थी. So how was it possible? So decolonization did not take place then at that time. And another reason is that we had many more important challenges at that time. डीकॉलोनाइज करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हमारे सामने थे. एक बहुत बड़ा देश था, संसाधनों की कमी थी, शिक्षा की कमी थी, हम बहुत सारी चीजों के लिए दूसरों पे निर्भर थे, ये बहुत सारी चीजें थी. इसलिए दैट पॉइंट डिड नॉट गेट मच अटेंशन देन. बट नाउ दिस पॉलिसी insists on that. This policy lays emphasis on this point that now this is the high time that we should decolonize our children from the unnecessary Western influence. This is what cleansing the Western influence means. हम कॉलोनाइज होना कब से शुरू करते हैं? जब हम स्कूल में पहला कदम रखते हैं. जब हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं ना, नर्सरी या एलकेजी या यूकेजी में, तब से हमारा कॉलोनाइजेशन शुरू हो जाता है. What kind of poem they do read there? Jack and Jill went on the hill. याद है? आप में से कुछ लोगों को ये पोएम याद होगा. I had never got education in nursery or somewhere, but I remember the children used to remember this poem, Jack and Jill went on the hill. Even today, in comedy also, Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. What is it? Why Johnny? Why Jack and Jill? कहने का मतलब मेरा ये है कि at that early stage, this mental colonization begins. And this policy has pinpointed it.
इसलिए ये पॉलिसी कहती है कि द टेंडर एज इज द राइट टाइम टू क्लीन, टू रिमूव द अननेसेसरी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, एंड at that time we should tell them about our past, our stories, our myths and our stories. आपको अगर कभी वक्त मिलता है तो अगर आपका बच्चा हाई स्कूल में है, सेकेंडरी में है, तो कभी उसका हिस्ट्री का किताब खोल के देखना, उसमें इंडियन हिस्ट्री कितना पार्ट ऑक्युपाई करती है। आप एक बार वक्त मिले तो देख लेना। ये शिवाजी को, नेहरू को, गांधी जी को एक एक पैराग्राफ में निपटाते हैं वो, ऐसे एक एक पैराग्राफ में निपटाते हैं। Their calendar never matches with Hindi medium calendar. Never matches. उनकी छुट्टी का शेड्यूल हमारी छुट्टियों से मेल नहीं खाता है, इसलिए आप में से बहुत सारे लोग छुट्टियां एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि उसका स्कूल चालू होता है। दिस पॉलिसी से दो, आपने शायद नोट किया होगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम द फर्स्ट 3 years of the preschooling have been formalized here. इससे पहले नर्सरी को कोई ज्यादा अहमियत नहीं देता था, उसको लीगल स्टेटस ज्यादा नहीं था, लेकिन इस पॉलिसी में पहले 3 साल और दूसरे 2 साल 5+3+2 कहते हैं ना, ये 5 जो ईयर्स है ना, ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड, दीज वेरी टेंडर ईयर्स ऑफ द चाइल्ड आर हियर, व्हाट आई कैन से, identified by, tapped by this policy. अब यहाँ के करिकुलम में बदलाव होगी। अब जैक एंड जिल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे व्हाट इज दिस, पंचतंत्र की बात करेंगे, हम जातक कथा की बात करेंगे, हम हितोपदेश की बात करेंगे, हम रामायण की बात करेंगे, हम महाभारत की बात करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अब बहुत हो गया यूरोपियन हिस्ट्री, बहुत हो गए यूरोपियन हीरोज और हीरोइंस। हम उनके किंग के, हमें ऑफिस के बारे में सुनना नहीं है। हमारे पास तानसेन क्या मर गए क्या? आपको पता होगा कि एक लव स्टोरी पढ़ाते हैं बच्चों को, ऑर्फेस एंड मिरांडा, समथिंग नेम इज देयर, ऑर्फेस एंड मिरांडा। ऑर्फेस एक गायक था, बहुत अच्छा बजाता था, जब वो बजाता था तो सारे प्राणी आकर खड़े हो जाते थे। भाई उसका बेटर मॉडल हमारे पास भी तो है, तानसेन का, है कि नहीं? तानसेन का मॉडल है ना अपने पास। तो दिस इज व्हाट दिस पॉलिसी सेज। अब बस हो गया स्पाइडरमैन, अब हम हनुमान की बात करते हैं। तो इंडियन मॉडल टू बैटमैन इज शक्तिमान नाउ। मेरा कहने का मतलब कि जहां जहां संभव है वहां वहां हम यूरोपियन आइकॉन को इंडियन आइकॉन से रिप्लेस करेंगे। दिस इज व्हाट दिस पॉलिसी इज। आप एक बार, मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये मेरा ये सेशन होने के बाद अगर आप नए सिरे से इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं तो यू विल गेट मेनी मोर थिंग्स रिवील्ड देयर। दूसरी बात ये रिवाइवल ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS हम जिसको कहते हैं ना, ये पॉलिसी हमारी जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, मैं शिक्षा व्यवस्था कह रहा हूं, समाज व्यवस्था नहीं कह रहा हूं, जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको रिवाइव करने की बात करती है। मैंने कहा ना कि 1858 में 3 विश्वविद्यालय बने और उनका आइकॉन क्या था, उनका मॉडल क्या था, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ऑफ दैट टाइम। 1850s में जिस प्रकार लंदन यूनिवर्सिटी था, उसी के क्या कहते, उसी के धरती पे ये 3 विश्वविद्यालय बने थे। एंड व्हाट वाज दैट मॉडल? देयर विल बी क्लियर कट डिविजन ऑफ फैकल्टीज, faculty of art, faculty of science, faculty of commerce, faculty of this, faculty of that. Clear cut division. And what more was there? There will be a university at the central place and there will be affiliated colleges. ये मॉडल था। इसी मॉडल पे हमारे सारे विश्वविद्यालय आज भी काम करते हैं। आज भी कॉलेज फैकल्टी किस नाम से ज्यादा जाना जाता है, ये आर्ट्स कॉलेज है, ये कॉमर्स कॉलेज है, ये साइंस कॉलेज है।
है कि नहीं? आज यूनिवर्सिटी क्या है, एक यूनिवर्सिटी होती है और उसके बहुत सारे एफिलिएटिंग कॉलेजेस होते हैं. तो दिस पॉलिसी सेज वी आर गोइंग टू फेज आउट दिस एफिलिएशन सिस्टम इन द कोर्स ऑफ टाइम. हम धीरे 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 इसको खत्म करेंगे, एफिलिएशन सिस्टम को. हाउ एंड व्हाई? दिस पॉलिसी सेज now we will make our universities and colleges on the line of these universities. जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा थी, यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला थी, या यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला थी, इसके तर्ज पे हम अपने विश्वविद्यालय बनाएंगे. और वो विश्वविद्यालय कैसे थे? वहां कोई फैकल्टी के बंधन नहीं थे, दीवारें नहीं थी वहां फैकल्टी की. जिसको जो पसंद हो, जिसको जो अफोर्डेबल हो, जिसको जो सहने की क्षमता हो, वो शिक्षा पालो. मतलब एक बात एक लाइन में समझ लेना आप कि आने वाले समय में ये जो दीवारें हैं ना फैकल्टी की, वो ढहने जा रही है. और हमारे सारे ये पॉलिसी कहती है ना, हम वी आर गोइंग टू ब्रिंग मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, वी आर गोइंग टू ब्रिंग होलिस्टिक एजुकेशन. द मॉडल इज दीज यूनिवर्सिटीज. इस विश्वविद्यालय के तर्ज पर हमारे नए विश्वविद्यालय बनेंगे. दैट इज वन थिंग. आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही उद्घाटन हुआ है. हमारे पीएम वहां गए थे, है ना? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को रिवाइव किया गया है. रिवाइव, अब वो किस हद तक जाएगा वी डोंट नो, बट इट हैज बीन रिवाइव्ड देयर. ये विक्रमशिला आज भी हिंदुस्तान में है, लेकिन तक्षशिला, ये तक्षशिला आज हमारे हिंदुस्तान में नहीं है. इट इज इन पाकिस्तान टुडे. ओके. सेकंड बात आती है यहाँ IKS की, इंडियन नॉलेज सिस्टम की. यू नो दैट, मैंने आपको शुरू में कहा क्या, लगभग हम 200 साल, कम से कम 150 साल हम इसी शिक्षा में रहे हैं. आजादी के पहले के 150 साल और बाद के 75 साल. तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि a cultural amnesia was caused. हम अपना अतीत भूल गए. हम भूल गए कि हमारे पास भी कुछ चीजें अच्छी थी. हम भूल गए कि हमारे पास भी कोई साइंटिस्ट थे. हम भूल गए कि हमने भी कई क्षेत्रों में अच्छा काम किया था. बट दैट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन वाज कट ऑफ समवेयर. वेयर? 1850s. वहां कट ऑफ हो गया वो. ये पॉलिसी कहती है कि अब हम उनको रिवाइव करेंगे, इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम रिवाइव करेंगे, उसको रिन्यू करेंगे. हाउ? दीज पीपल विल बिकम नाउ पार्ट ऑफ आवर करिकुला. आप में से बहुत सारे लोगों को ये CBCS पता होगा, क्रेडिट फ्रेमवर्क पता होगा. उसमें मेजर है, माइनर है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, वैल्यू एडेड कोर्सेस है, स्किल ओरिएंटेशन कोर्सेस है ना. ये इस मेजर में एक कंपल्सरी पेपर IKS का है कि नहीं? एक पेपर IKS का. रिमेंबर, इन एवरी फील्ड, इन एवरी सब्जेक्ट, सम साइंटिस्ट फ्रॉम दैट फील्ड विल बी देयर टू स्टडी. अगर आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको इस विष्णुगुप्त शर्मा या जो भी था ना, चाणक्य को पढ़ना पड़ेगा. अगर आप राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हो तो किसी इंडियन को पढ़ना पड़ेगा. अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो भास्कराचार्य को या आर्यभट्टा को पढ़ना पड़ेगा. दिस पीपल विल बिकम पार्ट ऑफ योर करिकुला. मैंने कहा ना, कोई हमारे सुधीर कुमार जी इंग्लिश लिटरेचर से हैं. सुधीर जी प्रकट हो जाइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. सुधीर जी कहाँ गए? चलो कोई बात नहीं. हाँ, आपने इंग्लिश में PG, आपने इंग्लिश में मास्टर्स किया है, राइट? Yes. And I think, sir, but I am teaching sociology. I have done my कोई doctorate बात from नहीं, the कोई बात नहीं. I agree. लेकिन आपको कुछ चीजें तो याद होगी ना PG की, इतने तो भूले नहीं होंगे 20 years back. And I know that as per that old system, there were some 8 or 10 papers for masters. कितने पेपर थे Yes, आपको? sir. Total 8 थे. First year you have to go for the 4, second year you have to Yes, I also belong to the same generation. आप थोड़ा याद करना,
उस 8 पेपर में से कितने पेपर इंडियन राइटिंग पे थे, इंडियन लिटरेचर पे थे? So Hardly there one. was only one. Hardly Only one. one where we read about the And that was Madras again in and- option. Yes, sir. But I have taken Indian literature as. मतलब हम मास्टर्स में 8 पेपर में से सिर्फ 1 पेपर में इंडियन लिटरेचर पढ़ रहे थे और बचे 7 पेपर में हम यूरोपियन लिटरेचर पढ़ रहे थे। Yes, sir. इसका रिजल्ट ये हुआ, इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि सुधीर जी या कोई और हमारा इंग्लिश लिटरेचर का बच्चा शेक्सपियर के सारे प्लेस के नाम याद करता, उसे पूरे याद है। उसको अरिस्टोटल के पोएटिक्स में क्या है ये पूरी तरह पता है, लेकिन उसको भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में क्या है पता नहीं। शेक्सपियर के सारे ट्रेजेडीज के नाम वो बाय हार्ट बताएगा, लेकिन वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कालिदास का नाटक कौन सा और पोएट्री कौन सी है, नहीं कर पाता। Why? It is not his or her fault. It is because that gentleman had never had any opportunity to read them. अगर हमारे करिकुलम नहीं होगे तो हम पढ़ेंगे कैसे उनको? Now this policy says we are bringing them back. IKS का रिवाइवल मतलब हमारे करिकुलम में ये जो लोग हैं इतने सारे इनके नाम पतंजलि, पाणिनि, नागार्जुना, गौतमा, पिंगला, these are the people who made some contribution in their field, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं। हमारे सारे थ्योरीज वेस्टर्न है, सारे साइंटिस्ट वेस्टर्न है, सारे मेथड्स वेस्टर्न है। इसलिए इस एनईपी में भी और इस वर्कशॉप, इस प्रोग्राम में भी आईकेएस पे आपके 2 लेक्चर होने हैं। व्हाई? टू रिवाइव देम। आई विल मूव अहेड। प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, लिटरेचर एंड कल्चर, इसको तो हम जानते हैं। ये पॉलिसी कहती है कि अब हमें अपनी भाषाओं की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज लैंग्वेजेस आर द ट्रेजर हाउसेस ऑफ आवर कल्चर एंड नॉलेज, राइट? लैंग्वेजेस आर द ट्रेजर हाउसेस ऑफ आवर कल्चर एंड नॉलेज। तो हमें अपनी भाषाओं की तरफ पढ़ना पड़ेगा। बहुत हो गया इंग्लिश, बहुत हो गया सम्मान कहते हैं ना, बहुत हो गया इंग्लिश। मैं ये कह रहा हूं, हालांकि मेरी रोजी रोटी इंग्लिश पे चलती थी, because I taught English for more than 27 years. But even today I am saying that बहुत हो गई English. Now let us turn to our own literature and language. Therefore this policy says now there should be Department of Sanskrit in every university. ये पॉलिसी में आपने देखा होगा कि ज्यादा फोकस संस्कृत लैंग्वेज पे है, ज्यादा फोकस है उसमें। This policy says there should be an Indian Institute of Translation and Interpretation to study our classical languages as well as modern Indian languages. ठीक है? और दूसरी बात है, हमने ये भी कहा कि टीचिंग शुड टेक प्लेस इन लोकल लैंग्वेज नाउ। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, कितना संभव है, कितना असंभव है, वो तो बात की बात है, लेकिन दिस पॉलिसी सेज व्हाई? Because in these languages, in this literature, in this culture, we will find some roots. And finding the roots will attach us to our past, and we will have a sense of, I can say, pride there, sense of belonging there. This is what this policy says. And lastly, last 1 or 2 slides are there. मेरे ख्याल से मेरे पास 1 या 2 मिनट है. Now, all these moves, ये भी है ना, CBCS, multiple exits, ABC, then regulatory system, then this ADGC, मैं इन सारी चीजों को डीकोलोनाइजेशन की दिशा में डाले हुए कदम की ओर देखता हूँ। अभी जो हमारा सिस्टम है वो पूरा ब्रिटिश सिस्टम है, मतलब हम पुराने चीजों को, हम वही सिस्टम फॉलो कर रहे थे। भाई आर्ट्स का बच्चा कॉमर्स का कुछ नहीं पढ़ पाएगा, तो हमने इसको रोन दिया। हमने कहा कि अब सीबीसीएस बनेगा, जिसको जो चाहे वो आप निश्चित मात्रा में पढ़े। मतलब फैकल्टीज की दीवारें हमने कैसे गिराई, ये पॉलिसी कैसे गिराती है, सीबीसीएस लाके गिराती। अब टाइम फ्रेम को कैसे खत्म करती है कि चलो कोई जरूरत नहीं 3 साल में आप डिग्री कंप्लीट करें, आप चाहे तो 1 साल में डिप्लोमा ले लो और काम करके वापस आना चाहे तो आ लो। ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ टाइम ऑल्सो, ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ मोबिलिटी, एबीसी बना है, आप कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हो।
जरूर नहीं कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है वहीं से सारी चीजें पढ़ लो आप. यू कैन गो एनीवेयर ऑनलाइन ऑल्सो. देन रेगुलेटरी सिस्टम. रेगुलेटरी सिस्टम मीन्स अवर मॉनिटरी सिस्टम. आजकल सब कुछ माए बाप यूजीसी है ना. हमारा सब कुछ यूजीसी देखती है. फंडिंग भी वही करेंगी, हमारे रूल रेगुलेशन वही बनाएंगी, असेसमेंट का काम उसकी ऑटोनोमस बॉडी करेंगी, और करिकुलम की गाइडलाइन भी वही देगी. आज ये हालत है ना, हर एक सर्कुलर यूजीसी निकालती है. ये पॉलिसी इसको भी ब्रेक करने जा रही है. वो क्या कहेंगी, HECI नाम का एक काउंसिल बनेगी और उसके 4 वर्टिकल्स हो गए. एक काम करेगा फंडिंग का HEGCA, एक काम करेगा ऐसे एक्रेडिटेशन का वो NEC करेगी, एक काम करेगा GEC मतलब आउटकम ऑफ एजुकेशन, एंड NHERC विल टू लुक आफ्टर रेगुलेशन. अब एक ही काम मतलब सारे काम एक ही इंस्टीट्यूट नहीं करेगी. और लास्टली मैं कहूंगा फ्रीडम टू कॉलेजेस फॉर अपवर्ड मूवमेंट. 20 साल पहले के हालात आप देख लो जरा, 15 साल पहले के हालात देख लो. कॉलेज कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा हो, वो कॉलेज ही रहता था. और विश्वविद्यालय कितना भी बुरा हो, विश्वविद्यालय रहता था. इन द मास्टर रोल, इन द सर्वेंट्स रोल. लेकिन इस पॉलिसी ने ये रास्ते खोल दिए हैं. अब कोई विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस भी बन सकता है. हालांकि ऑटोनॉमी पहले भी थी. ऑटोनॉमस के आगे जाके वो विश्वविद्यालय क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी बन सकता है, वो विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बन सकता है, वो विश्वविद्यालय ADGC भी बनता है. तो दीज आर द थिंग्स विद विच दिस पॉलिसी इज ब्रेकिंग द कॉलोनियल लेगेसी. लास्ट थिंग, अगर आपने इस पॉलिसी को पढ़ा है तो बहुत सारे इंडियन वर्ड आपको यहाँ मिलेंगे. बहुत सारे इंडियन वर्ड है वहां. इसके पहले की पॉलिसी आप पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको इंडियन वर्ड नहीं मिलेंगे. ये बहुत सारे वर्ड वहां मिलते हैं आपको. कौन से परख है, गुरु दक्षता है, क्या दीक्षारंभ है, मेरू है, सबसे इंपॉर्टेंट विश्व गुरु है. ये सारे वर्ड आपको वहां मिलते हैं. डेलिबरेटली दीज वर्ड्स आर केप्ट देयर. व्हाई? टू गिव इट एन इंडियन फ्लेवर. हम तड़का मारते हैं ना, बाद में कुछ चीज बनाते और बाद में तड़का किसी और चीज का मारते ताकि उसका फ्लेवर वो आए. इसी प्रकार ये सारे इंडियन वर्ड का तड़का वहां लगा है ताकि इससे हमें इंडियन फ्लेवर मिले. नाउ द लास्ट थिंग, लास्ट स्लाइड ऑफ माय प्रेजेंटेशन. ऑल दीज थिंग्स आर नॉट विदाउट चैलेंजेस. ये भी बात को मैंने कहा था कि सेकंड पार्ट विल टॉक अबाउट द मूव्स एंड द लास्ट पार्ट विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस. These are the challenges. सबसे बड़ा रुपया. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हमारे पास? फाइनेंस का. हमें मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज बनाना है. स्टाफ लगेगा, टीचिंग स्टाफ लगेगा, नॉन टीचिंग स्टाफ लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा. पैसा कौन देगा? आपको शायद ये भी पता होगा कि नॉट मोर देन 200 इंस्टीट्यूट्स आर फंडेड बाय सेंटर. ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 300. सिर्फ 300 इंस्टीट्यूट्स आर फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑलमोस्ट 423 यूनिवर्सिटीज आर स्टेट यूनिवर्सिटीज. जितने मैं कह रहे थे 45,000 कॉलेजेस है, ये सारे 45,000 कॉलेजेस स्टेट के हैं. लगभग सारे स्टेट के हैं. मतलब हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा लोड कहाँ है? स्टेट पे. सेंटर ने पॉलिसी तो बनाई, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो चीजें लगेंगी, उसके लिए जो पैसा लगेगा वो कहाँ से लाएंगे? So this is one important challenge in this way. Second, political disagreement. इसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन you can understand. You can understand. स्टेट में और सेंटर में अगर एग्रीमेंट है, ठीक से कंकार्ड है, तो सारी चीजें आराम से चलती है. अगर वहां डिसएग्रीमेंट है तो ये चीजें नहीं चलेगी. जैसे आप जानते हो कि आई थिंक आई हर्ड लॉन्ग बैक दैट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैड रिजेक्टेड NEP. गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने भी शायद उसी तरह की बात की. मैंने कहा ना, MP में ये 2 साल पहले शुरू हुआ है, यूपी में उससे पहले शुरू हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी शुरू होने जा रहा है. व्हाई? पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट. थर्ड थिंग, हमें विश्वगुरु बनना है ना. विश्वगुरु बनना मतलब दुनिया को हम सिखाएंगे, दुनिया के बच्चों को हम सिखाएंगे. मतलब इसका मतलब
दुनिया के सारे देशों से लोग हमारे पास, बच्चे हमारे पास पढ़ने आएंगे, लेकिन उसके बीच में सबसे बड़ा रोड़ा यह है कि यहाँ का सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, उस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज अ बिग चैलेंज। हम आप कोई 40 में है, कोई 50 में है, जब भी हम बात करते कि अपने बच्चों को कहीं पढ़ने भेजना है तो सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि वो सिटी का माहौल क्या है, वो सिटी सेफ है कि नहीं है। And remember, the things that are taking place in those days are alarming for the foreign parents. और पिछले 3 साल का AISG का डेटा कहता है कि हर साल 2-2 हजार बच्चे कम हो रहे हैं हमारे पास। 1920 में 50,000 फॉरेन बच्चे हमारे पास थे, 2021 में वो 48,000 हो गए, और 21-22 में वो 46,000 हो गए। दिस इज अलार्मिंग, वी शुड थिंक अबाउट दैट। थर्ड थिंग, मैंने कहा कि ये पॉलिसी संस्कृत को ज्यादा बढ़ावा देती है, अच्छी बात है, संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन पीपल विल नॉट लर्न संस्कृत अंटिल दे हैव होप दैट देयर इज एम्प्लॉयबिलिटी चांस। अगर संस्कृत पढ़ के रोजगार की संभावना बनती है तभी तो लोग पढ़ेंगे ना। मैंने कहा कि मैंने इंग्लिश में मास्टर किया, मैंने इंग्लिश में PhD की, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंग्रेजी से बहुत ज्यादा प्यार करता था ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अगर मैं इसमें मास्टर करता हूं तो मुझे जॉब मिलेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे संस्कृत में पढ़ना चाहिए तो फिर संस्कृत में एम्प्लॉयबिलिटी प्रोबेबिलिटीज आपको बढ़ानी पड़ेगी। दैट इज अगेन अ चैलेंज। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने कहा कि IKS का रिवाइवल, आप कई बार पेपर में पढ़ते होंगे कि अभी हमें ज्योतिष शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, अभी हमें गरुड़ पुराण पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ समाज का एक तबका इसको ऑब्जेक्शन ले सकता है कि भाई क्या हम वही तो नहीं जा रहे जहां से हम आए निकले हैं, क्या हम समय की चक्की को उल्टा तो नहीं घुमा रहे हैं। ये भी डाउट कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है। और दूसरी बात जो लास्ट का है, मैंने कहा कि ये पॉलिसी कहती है कि हर एक विश्वविद्यालय में संस्कृत डिपार्टमेंट होना चाहिए। अग्रीड, मैं मानता हूं, लेकिन मेरी ये भी जिद रहेगी कि देश के हर एक विद्यालय में कन्नड़ डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, तेलुगु डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, मलयालम डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, मराठी डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी एक भाषा को बढ़ावा देने की बात करोगे तो हो सकता है कि पर्टिकुलरली फ्रॉम साउथ some voices of disagreement, some voices of protest may be there. And one more thing, मुझे पता नहीं हाउ फार आई एम राइट और रॉन्ग, जितने भी मैंने ये नाम गिनाए ना आपको, ये नाम, all these people belong to the 10th century or before that. I repeat, all these people belong to 10th century AD or before that. इसमें से 1200 के बाद का एक भी आदमी नहीं। क्या उस 800 सालों में हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये पॉलिसी मुझे थोड़ी सी बायस लगती है कई जगह। आई फील डाउट somewhere it is little bit biased, so that certain parts are omitted there. Anyway, thank you very much. जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि मैं टीचर हूं तो थोड़ा इधर उधर भागता हूं और बोलने के चक्कर में 1 मिनट, आई एम क्लोजिंग इट। Thank you, sir. 1 मिनट। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. अगर Thank you very much. टाइम है, अरे 1 मिनट रुकिए, अगर आपके पास टाइम है, यू मे आस्क समथिंग इफ यू वांट टू आस्क। Sir. Sir, I have a Yes, question please. to ask. Sir, this NEP is all about the bringing back the old or ancient education system. So, how do we compete with an external world? Participants, you are requested to introduce yourself Remember, first, remember. then ask your question. कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? Yeah, I'm Dr. Mohan Kumar from St. Joseph's University, Bangalore. Okay, I agree. I told you it wants to revive the thing. When we say we are reviving something, it does not mean that we are bringing in its old form as it is.
रिवाइवल होता है ना तो उसमें से जो चीजें आज के टाइम में रेलेवेंट है उसी को हम मान लेंगे, नॉट एवरीथिंग. एंड रिमेंबर, looking towards our own past does not mean that we are not looking toward the world. ये पॉलिसी सिटीजनशिप, वर्ल्ड सिटीजनशिप की भी बात करती है. आपको वैल्यू एजुकेशन, सॉरी वैल्यू सिस्टम पे बात की होगी इसमें. तो इट टॉक्स अबाउट, इट सेज दैट वी विल मेक आवर स्टूडेंट इन सच ए वे दैट दे विल बी अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड लेबर फोर्स, वर्ल्ड मैन फोर्स. हाँ, some questions may be there, लेकिन देखना सर हमें ये होगा मोहन कुमार जी कि how we can balance it. Because I belongs to a science I know, fraternity where still we use all scientific literature from the Latin or European Yes, I and all agree. other things. But how do we match with that particular knowledge system with now the Indian knowledge system or new or ancient knowledge system? I'll put you a counter question, मोहन कुमार जी, if you don't mind. हाँ, if you don't Yes, mind. yes. जितने भी साइंटिस्ट के नाम हमने यहाँ दिए थे, है ना, ये 10-15 नाम थे, इसमें Yes, से कितने लोगों को yes. हम जानते हैं? How many of them we have studied? How many of them we have studied? Not many, sir. We have not studied any scientist. There is my point lies. This policy says that we will bring these people in our curricula. And remember, if they prove relevant to the present times, then only we can accept them, otherwise we will discard them. जो चीजें आज के समय में relevant नहीं है, उनको हम क्यों पढ़ेंगे? But मैं एक एग्जांपल देके थोड़ा खत्म करूंगा. We know very well that Dr. B.R. Ambedkar burned the Manusmriti, right? And on that particular day, every year we burn the copy of the Manusmriti, right? अब मेरा सवाल ये है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्यों जलाई? उन्होंने पहले उसको पढ़ा, उसमें उनको कुछ इविल चीजें दिखी, फिर फाड़ के उन्होंने जला दी. हम किसी चीज को पढ़े बिना क्यों फाड़े, क्यों जलाए? पहले उसको देख तो लो, अगर वो सही लगती है तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो छोड़ दो. Revival of IKS does not mean, remember, revival of that social order. मैं भी इससे एग्री नहीं करूंगा सर, मोहन कुमार जी. I will not also agree with that. मैंने एक डाउट लास्ट में लिया था ना, does it mean that we are rolling back the time? No. समय के चक्के को हम उल्टा घुमाना चाहते हैं क्या? नहीं. बड़ी मुश्किल से हमने डेमोक्रेसी पा ली है, बड़ी मुश्किल से हमने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पाया है, बड़ी मुश्किल से हमने लास्ट तबके तक ये सारी चीजें ले गए हैं. अगर वो सिस्टम में क्या था, a few people were allowed to take education, rest of them were denied. तो इसका मतलब ये नहीं है सर मोहन कुमार जी. I agree, it is very difficult to match the thing, but let us see what happens. How do we get that knowledge? See, when we talk about the Aryabhata, of course, he might have told only certain things. But how do we get the deep knowledge, what Aryabhata and how the Aryabhata system and everything? Remember, sir, it is told that, now I'm not telling you the authentically, it is told that all these books were carried away by Europeans to their own land. And these books are available there. Some books are available there, not all of them. Now, therefore, there is an Institute of Interpretation and Translation. And remember, you must be knowing that even today, few days back, the process of translating the books have begun there. Some books are available there. लेकिन देखते क्या होता है, मैं कहता हूँ ना कि सारी चीजें संभव है नहीं है ये. It is a big challenge. It is big challenge to bring those people alive back and put the thing before the people. ये मुश्किल है. अब तब ये सॉरी मोहन कुमार जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इसमें कुछ चैलेंज है. I agree with that. But let us see what happens. चलो, anyway, anybody else? Thank you, sir. Thank you. चलो, thank you. अब तक मैंने आपके शायद मैंने आपके 15 मिनट ज्यादा लिए हैं.